بڑا فیصلہ سنا دیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جہانگیر خان ترین تاحیات نااہل قرار۔ فیصلے پر جہانگیر ترین کہتے ہیں میرے معاملے میں 62(1)(f) کا یوں اطلاق نہیں ہوتا۔ ٹیکس شدہ آمدن کا مکمل فیصلہ عدالت میں پیش کیا۔ نظر ثانی کی درخواست تیرے التوا ہے، امید ہے انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، فیصلہ خواہش کے مطابق نہیں آیا پھر بھی قبول کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے، ایک شخص کے لیے ترمیم کی گئی تو احتجاج کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کل بہاولپور کا دورہ کریں گے۔ شہر بھر میں استقبالیہ بورڈ سرویساں، مختلف منصوبوں کی افتتاح سمیت خیرپور ڈاہا میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ جو مدینے کے گلی پیار، محبت اور عشق معراج کی رات، رحمت کون و مکان، نازش وقار انسان اس رات بنے خلا کے ازل اور صاحب کن کے مہمان، گھر گھر چراغاں، ہر ساتھ فیاض افروز، گھروں اور مساجد میں عبادات کا اہتمام۔ صوبہ بھر میں 337 رمضان بازار لگانے کے لیے فنڈز جاری۔ ضلع ملتان میں 13 رمضان بازار 14 مئی سے آپریشنل ہوں گے۔ ممتاز آباد، مدنی چوک، شمس آباد، MDA روڈ، باغ، لانگی خان، ولایت حسین کالج، بستی ملوک اور سورج بیانی کے علاقے بھی شامل۔ ملتان میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران 211 مریض مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے۔ 14 سال سے کم عمر بچوں کی بڑی تعداد گیسٹرو کا شکار۔ رنگ ملتان منصوبہ مکمل کرنے کی تیاریاں، پروجیکٹ مینیجر منصوبہ جلد مکمل کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ PHA کا خط۔ ملتان پروجیکٹ میں گھنٹہ گھر، دمدمہ، پاک گیٹ اور حرم گیٹ شامل۔ ڈیرہ غازی خان میں تمام لیب فارماسسٹ کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی منظوری۔ 17ویں اسکیل کے فارماسسٹ کو ہر ماہ تنخواہ کے ساتھ 15,000 اور 18ویں اسکیل کے فارماسسٹ کو 10,000 الاؤنس ملے گا۔ محکمہ خزانہ کا نوٹیفکیشن جاری۔ مارٹنی سیل کرو، نوٹسز جاری کرو، ریکوری ٹارگٹ پورا کرو۔ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان کے افسران کو ہدایت۔ اپریل میں 26 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹارگٹ پورا کرنے کی ہدایت۔ ملتان PHA کا فیس جمع نہ کرانے والی 20 سے زائد ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو آخری نوٹس، 16 اپریل تک فیس جمع کرانے کی ہدایت۔ عدم تعمیل پر کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ۔ بہاولپور PP 268 کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری، ٹیکسٹائل اور سیویج لائن بچھانے کے کام شامل۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، DC رانا سلیم افضل نے 1 یورل پارک کا افتتاح کر دیا۔ پارک میں تمام صوبوں کی ثقافت نمایاں۔ جنوبی پنجاب میں ہوا کی بیٹیاں درندوں کی ہوس کا نشانہ بننے لگی۔ ڈیرہ غازی خان میں 5 سالہ بچی کو موسم اللہ بخش نے ورگلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ادھر بہاولپور یسوان میں 14 سالہ شمشاد بنی زیادتی کا شکار، پولیس کارروائی نہیں کر رہی، لواحقین کا الزام۔
पाशी मियांवाली के एसडीओ का दफ्तर भूत बंगले में तब्दील हो गया। कमरों की छत और दीवारों की हालत भी मखदूश। मुलाजमीन का हुक्म, ऑफिस को तामीर नऊ करने का मुतालबा। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली। मुल्तान में नून लीगी कारकुनान का एहतजाज। मुस्ताहिरीन के अदालती फैसले के खिलाफ नारेबाजी। कारकुनान का फैसले को मानने से इनकार। खाना कैसे पकाए? बहावलपुर टिब्बा बदर शहर के मकीन गैस न मिलने पर चूल्हे सड़कों पर ले आए। हुकाम और इंतजामिया का गुस्सा चूल्हों की पटाई करके निकाला। मुजाहिरीन का गैस की जल्द फराहमी का मुतालबा। मुल्तान में इंसदाद डेंगू टीम के 700 डेली वेजेस मुलाजमीन 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। परेशान मुलाजमीन इंतजामिया से नाला। इंसदाद डेंगू मुहिम मुतासिर होने का खतरा। तोंसा शरीफ तहसील अस्पताल ट्रामा सेंटर के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन का एहतजाज। 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन का इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में शुगर मिल इंतजामिया से नाले में केमिकल फेंकने लगी। महमूद कोट और करीबी इलाकों की मकीन सरापा एहतजाज। शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहीमिया खान में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट और इंस्पेक्टर्स का 19वें रोज भी एहतजाज। स्किल अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात न मानने पर मुजाहिरीन का लाहौर में धरने का ऐलान। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न होने पर तुलबा का 18वें रोज भी एहतजाज। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का ऐलान। के सामने सड़कें टूट फूट का शिकार। गड़े पड़ने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। आंधी आराइयां वाली बांडा पुराई खैलावाला शाहीन टाउन और मुस्लिम कॉलोनी के मकीन परेशान। खादिम आला पंजाब के तालीमी मैदान में बेहतरी के दावे सखी सरवर में हवा हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 की इमारत का काम 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी शुरू न हो सका। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। वालिदैन परेशान। मियांवाली पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अहमद शाह वली का रिहायशी अब्दुल सत्तार गिरफ्तार। क्लेशनकोव बरामद। मुकदमा दर्ज। उधर बहावलपुर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद अदरीस की पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग। अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह। अफसरान को ईमानदारी और लगन से काम करने की हिदायत। सखी सरवर कोयटा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। दुनियापुर 2 कोटा चौक पर ट्रक बेकाबू होकर रिक्शे से टकरा गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाद पेश आया। रिक्शा ड्राइवर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में इंटरमीडिएट इम्तिहानात पार्ट 1 एंड 2 2018 का शेड्यूल जारी। पार्ट 2 के इम्तिहानात 5 से 21 मई तक जारी रहेंगे। पार्ट 1 के इम्तिहानात 22 मई से 6 जून तक होंगे। जीवे पाकिस्तान इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में डेरा गाजी खान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस में टीम के एजाज में तकरीब मुनक्किद। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से नौजवानों को इनामात से नवाजा गया। खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम। 24वीं जीवे पाकिस्तान साइकिलिस्ट रैली मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना। साइकिलिस्ट मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए एंटी नारकोटिक्स के ताउन से मंशियात के खिलाफ अवाम में आगाही स्टिकर्स और पम्फलेट्स तकसीम करेंगे।
खासी खान में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कल मकाम छुट्टी का ऐलान। डीसी इब्राहिम जुनैद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। और डेरा खासी खान झक्कर इमाम शरीफ में हजरत पीर सैयद नूर अहमद शाह की 30वीं उर्स की तकरीबात जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करें, आर्टिकल 62 1F के तहत मुंतखब उम्मीदवार का सादिक और अमीन होना जरूरी है। जहांगीर खान तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला सुना दिया। जी हां, आर्टिकल 62 1F के तहत मुंतखब उम्मीदवार का सादिक और अमीन होना जरूरी है। जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन केस 62 1F का मुतफिका फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक इस आर्टिकल के तहत ताहयात नाअहली होगी। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की नाअहली ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने फैसला पढ़कर सुनाया और कहा, आर्टिकल 62 1F के तहत अवामी नुमाइंदों को सादिक और अमीन होना चाहिए। जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है, नाअहली रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 60 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63 में मुद्दत का तयन हुआ है, ताहम आर्टिकल 62 1F में नाअहली का तयन नहीं किया गया। आर्टिकल 17A से 62 1F मुतासिर नहीं होता। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62 1F का इतलाक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर होगा। आर्टिकल 62 1F में इखलाकी जराइम में धोखाधड़ी, एतमाद तोड़ना, बेईमानी शामिल है। आगे बढ़े, अहम खबर शामिल करें। पुलिस लाइन बिहाड़ी में जिला भर के DSPs और SHOs की क्राइम मीटिंग हुई। संगीन मुकदमात और जेर तफ्तीश मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की गई। हसास मकामात और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई। आपको बता रहे हैं बिहाड़ी से, जहां पर पुलिस लाइंस बिहाड़ी में जिला भर के DSPs और SHOs की क्राइम मीटिंग हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफिज साले से। जी हाफिज साले, अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है हाफिज साले से। आपको बता रहे हैं बिहाड़ी से, जहां पर बिहाड़ी में संगीन जराइम के हवाले से मीटिंग हुई है पुलिस लाइन में, जहां पर जिला भर के DSPs और SHOs ने शिरकत की। संगीन मुकदमात और जेर तफ्तीश मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी की गई। मजीद जानते हैं हाफिज साले से। जी साले, बताइएगा। जी, आज पुलिस लाइन बिहाड़ी के अंदर जो है वो DPO बिहाड़ी उमर शेख मलिक की हिदायत पे जो है उनकी सरकार के अंदर पुलिस क्राइम मीटिंग का जो है वो इनेकाद किया गया। और इनकी क्राइम मीटिंग का मकसद जो ये था कि तमाम जिले भर के जो मुकदमात को जो है वो देखना और अलग अलग क्राइम का जो है वो जायजा भी लिया गया। DPO उमर शेख मलिक की हिदायत पर जो है वो तमाम इदारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इसके हवाले से इसके अतराफ में CCTV कैमराजात के हवाले से जो है वो भी इस पर खुसूसी तौर पर जो है तवज्जो दी गई। और इस सिलसिले में जो है वो DPO उमर शेख मलिक ने ये कहा कि जो पेंडिंग केसेज हैं, जितने भी हैं जेर इंतबा जितने भी मुकदमात हैं, उनमें मुलविस जो मुल्जिमान है फौरी तौर पर जो है वो उनको कैप्चर किया जाए, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जो है वो पाबंदी से हासिल किया जाए। और इसी तरीके से जो है पुलिस का जो है गश्त जो है जिला भर के अंदर जो है मुअस्सर किया जाए, ताकि स्ट्रीट क्राइम से भी बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया साले हमें अपडेट करने का। अपडेट करें रहीम यार खान से, जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को क्राइम सीन के हवाले से तरबियत दी गई। तरबियत में फर्स्ट रिस्पॉन्ड के हवाले से वक्फा पर पहुंचकर और शवाहिद को महफूज बनाने के हवाले से तरबियत भी शामिल है। देखते हैं आसिम सदीक की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस अमजद जावेद सलीमी की हिदायत पर रहीम यार खान में पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों को क्राइम सीन के हवाले से खुसूसी तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। क्राइम सीन के इंस्पेक्टर ने पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों को किसी भी हादसे या वाक़े की जगह पर पहुंचकर किए जाने वाले इकदाम के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। क्राइम सीन के हवाले से इनको बताया है कि क्राइम सीन क्या होता है। क्राइम सीन से मुराद कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई गैर कानूनी सरगर्मी सरजद हुई हो या कोई जुर्म सरजद हो। पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने भी इस तरबियत को अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को उजागर करने में मददगार करार दिया। फास्ट रिस्पॉन्डर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए,
اس لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ فرسٹ رسپونڈر جو پہلے آدمی پہنچتا ہے اس وقوع پر، اس نے وہاں کیا کرنا ہے۔ کسی بھی حادثے کے وقت پہنچنے والی کوئک رسپانس فورس کے طور پر پیٹرولنگ پولیس کام کرتی ہے۔ اکثر شواہد ضائع ہونے کی بنا پر تفتیش نہیں ہو پاتی۔ کرائم سین کی تربیت حاصل کرنے کے بعد شواہد کو محفوظ بنا کر تفتیش کو مکمل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آگے بڑھے ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں۔ ڈیرہ غازی خان میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہباز احمد نے قتل کیس کی سماعت کرتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزا سنا دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقہ شاہ صدر دین میں 2 سال قبل غیرت کے نام پر قتل ہونے والے محمد اقبال کے قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جرم ثابت ہونے پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہباز احمد نے مجرم جمعہ خان کو 25 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جمعہ خان پر الزام تھا کہ انہوں نے 2016 میں محمد اقبال کو کلہاڑی کے وار سے قتل کیا تھا، جس میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ محکمہ چائلڈ لیبر جہانیہ بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوشاں۔ جنوری 2018 میں شروع ہونے والے آئی پی پروجیکٹ کے تحت 200 سے زائد بچوں کو تعلیم اور وظیفہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات ماجد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ چائلڈ لیبر خانوال کے زیر انتظام جنوری 2018 میں آئی پی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت 9 سے 15 سال کے ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے جو مختلف دکانوں اور ورک شاپس پر کام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مین مقصد جو ہے، پرپز ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کرنا، اور اسپیشلی یہ وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس اپنی مجبوریوں کے تحت اپنے بچوں کو ورک شاپ پر بھیجنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کراچی پبلک اسکول کے پرنسپل عنایت نے حکومت پنجاب کے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین معاشی مجبوریوں کی وجہ سے تعلیمی اخراجات اٹھا نہیں سکتے۔ جو 5 سے 14 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان کو ہم جو مختلف ورکشاپ پہ، ہوٹل پہ، مختلف سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ان کو ہم نے بنیادی جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کی طرف لے کے آنا ہے۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اور مزدور بچوں میں ایجوکیشن کٹس بھی تقسیم کی۔ صدر پریس کلب راؤ خلیق احمد، چائلڈ لیبر آفیسر عمران اصغر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد اسلم، روہی، جہان۔ ڈیرہ غازی خان سے اہم خبر شامل کریں۔ ڈیرہ غازی خان انڈس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے خوشخبری۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اب تمام طلبہ کو ڈگریاں جاری کرے گی۔ ایچ ای سی نے منظور شدہ ڈگریاں جاری ہونے سے 500 سے زائد طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر انڈس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے خوشخبری۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے۔ جی طیب۔ انڈس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلبہ کا جو احتجاج ہے وہ رنگ لے آیا ہے، اور خاص طور سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے، اس میں جو 2011 اور 12 میں جن طلبہ نے ایڈمیشن لیا تھا اور اپنے تعلیمی سال جو ہے تعلیمی سیشن جو ہے اپنے مکمل کیے تھے، ان تمام کو جو ہے ڈگریاں جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایچ ای سی سے منظور شدہ ڈگریاں جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی، جس سے 500 سے زائد جو طلبہ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور خاص طور پر وہ طلبہ جنہوں نے اپنی فیسیں ادا نہیں کی اور اپنی تعلیم جو ہے ادھوری چھوڑ دی تھی، ان کو یا تو اپنے کریڈٹ آورز پورے کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ڈگری جاری کی جائے گی، ورنہ اس ٹائم تک جو ہے ان کو ڈگری جاری نہیں کی جائے گی جب تک وہ اپنے کریڈٹ آورز پورے نہیں کر دیے جاتے۔ یہ جو فیصلہ جو ہے وہ سنڈیکیٹ کے دماغ کے اندر کیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد انڈس یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں جنہوں نے خاص طور پر 2011 اور 12 میں ایڈمیشن لیا تھا، ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جی بہت شکریہ طیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اب آپ کو بتائیں راجن پور سے، جہاں پر تمام اضلاع میں ہیڈ ٹیچرز کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکول کا نظم و نسق بہتر انداز میں چلانے کے لیے 36 اضلاع کے ٹیچرز کو تربیت دی جائے گی۔ اپریل سے تربیتی عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ 18 اپریل تک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، راجن پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں، تمام اضلاع میں ہیڈ ٹیچرز کو تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسکول کا نظم و نسق بہتر انداز میں چلانے کے لیے 36 اضلاع کے ٹیچرز کو تربیت دی جائے گی۔ اپریل سے تربیتی عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو راجن پور سے، جہاں تمام اضلاع میں ہیڈ ٹیچرز کو تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ملتان
पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस फील्ड क्राफ्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड क्राफ्ट कोर्स में मुल्तान और डीजी खान के 76 जवानों ने शिरकत की। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस की मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत हुई। अहम खबर से आगाह करें मुल्तान से, जहां पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस फील्ड क्राफ्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। फील्ड क्राफ्ट कोर्स में मुल्तान और डीजी खान के 76 नौजवानों ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस फील्ड क्राफ्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। मजीद जानते हैं मसर खान से। जी मसर खान। मसर खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों के जो फील्ड क्राफ्ट कोर्स था उसकी पासिंग आउट परेड हुई है मतीतल पुलिस लाइन में, और इस के जो मेहमान खसूसी थे वो एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस डीजी खान गौर मुश्ताक गुप्ता थे। इस फील्ड क्राफ्ट कोर्स में बहुत शुक्रिया मसर खान हमें अपडेट करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में जाँ बहक होने वाले ताजिर शेर आलम कुरैशी के अहले खाना से ताज़ियत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जहाँ बहक होने वाले नौजवान शेर आलम कुरैशी के घर इजहार अफसोस के लिए गए। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेर आलम कुरैशी दयानतदार नौजवान था जिसे कब्जा माफिया ने कत्ल कर दिया और वो इस कत्ल की मजम्मत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग को अदलिया का फैसला तस्लीम करना चाहिए। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते तो फिर उनको नुकसान हो सकता है, उसका अंदेशा है। और अगर वो बयानिया जारहाना बयानिया उसको जारी रखते हैं तो फिर आपने देखा कि बहुत से एमएनएज उनके अलहदा हो गए। शाह महमूद कुरैशी का जनूबी पंजाब सूबा के बारे में कहना था कि यह मुतालबा 30 साल पुराना है। जनूबी पंजाब को इसका हक नहीं दिया गया। मेट्रो बना दी गई पर शरीफपुरा और मंजूराबाद के इलाके सीवेज के पानी में डूब रहे हैं। बहसीयत एमएनए मुझे बहसीयत एमपीए जावेद अंसारी को 1 टका नहीं दिया। हमारे चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं, ये खड़े हैं शेख तार साहब, इनको 1 टका दिया है बताएं। जो हमारे 18 चेयरमैन शहर के मुंतखब हुए हैं, इन्हें खाकरोब नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी ने मकतूल के बच्चों को दिलासा दिया। मकतूल के वर्सा ने पुलिस और कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। क्यों न एक कप और दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है।
14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में तक और आसमानों की बुलंदियों तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर इंसानियत की मिराज है और ये सफर उम्मत मोहम्मदिया का एजाज है। मुल्क भर में शब मिराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़त व अज़मत की शान है कि जहाँ रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज शुरू होती है। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद हरीम इलाही में पहुँचे और अल्लाह ताला की ज़ियारत की। मुलाकात का मंजर सूरह नज्म में इस तरह बयान फरमाया गया है। फिर वो जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब तर आया, तो उस जलवे और उस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। सूरह नज्म में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आपने अपने रब की बहुत बड़ी बड़ी। अब आपको बताएं, मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर भर की मसाजिद और दरगाहों को खूबसूरती से सजाया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मजहर खान से। मजहर खान बताएगा क्या क्या तैयारियां जारी हैं मिराज नबी के हवाले से। जी बिल्कुल, शब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं और मज़ारात हैं उनको ख़ास तौर पर इस रात के हवाले से सजाया जा रहा है और लोग जोक दर जोक मसाजिद में आ रहे हैं, मज़ारात पर भी जा रहे हैं। मज़ारात के साथ पर हाज़री के साथ साथ जो मसाजिद हैं वहाँ पर जो खसूसी महाफिल मुनक्किद की जा रही हैं। मुल्तान में तकरीबन 20 बड़े ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर खसूसी महाफिल मुनक्किद की जा रही हैं। वहाँ सलातुत तस्बीह की इज्तिमाई तौर पर वो पढ़ाई जाएगी
उसके साथ साथ दीगर जो नवाफिल हैं वहाँ अदा किए जाएंगे। दुरूद और सलाम की जो सदाएं हैं वो अभी से ही बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखा पाएँ कि अब भी हम खानकाए हामदिया के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर जो मज़ार है, जो मस्जिद है, उसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ शहरियों की भी आमद जारी है और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। और नमाज इशा के बाद यहाँ पर जो एक बड़ी तकरीब है, जो ज़िला की तकरीबन सबसे बड़ी तकरीब है और तकरीबन 30 साल से ज़ायद अरसा हो गया ये तकरीब मुनक्किद हो रही है। यहाँ पर लोग जमा होंगे, मुख्तलिफ नवाफिल अदा करेंगे और नजराना अकीदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करेंगे। उसके साथ साथ जो पूरी रात ये इबादत का सिलसिला रहेगा, उसके बाद ख़ास तौर पर जो नफली रोज़े हैं वो रखे जाते हैं और उसका भी एहतमाम सहरी का किया जाएगा मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो ख़ास तौर पर जमा होंगे, सहरी करेंगे और नफली रोज़ा रखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। और ये सिलसिला मुल्तान में तकरीबन शुरू हो चुका है। लोग जोक तर जोक आ रहे हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ जो मज़ारात हैं वहाँ पर भी हाज़िरी दे रहे हैं, अपनी जो नजराना अकीदत है वो पेश कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। मुख्तलिफ जो अपनी परेशानियाँ हैं वो भी अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर वो भी दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो मुख्तलिफ हाजात हैं, मुख्तलिफ जो परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए। मुख्तलिफ यहाँ पर बच्चे भी देखने में आ रहे हैं, बुजुर्ग भी देखने में आ रहे हैं, नौजवान भी देखने में आ रहे हैं। इस वजह से मुल्तान में जो शब मिराज की तैयारियां हैं वो जोर शोर से जारी हैं और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और बाकायदा जो महाफिल हैं उसका सिलसिला कुछ देर में ही शुरू हो जाएगा। और फिल वक्त जो मसाजिद हैं उनको बड़ी खूबसूरती से, बड़ी आप कह लें कि बड़ी बेहतरीन लाइट्स लगाकर खूबसूरती से सजाया गया है और वो दूर से ही नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहर का बेशतर हिस्सा जगमगा रहा है। जी अच्छा मजर बताइएगा कि इंतजामिया के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो 20 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं इस्लामी, उनकी जानिब से वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। उसकी सिक्योरिटी के लिए 350 जो पुलिस अफसरान और अहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, देखते रहिए। क्यों न एक कप और हो जाए। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। की बात की जाए इंटरनेट के जरिए या फिर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए, तो डोमिसाइल भी सबसे पहले पंजाब में यहाँ पर शुरू किया और इस वक्त जो है बहावलपुर के DC ऑफिस में कमेटी रूम का इफ्तिताह कर दिया गया, जो कि जदीद कमेटी रूम है जिसमें तमाम तहसीलों के लिंक हैं और यहाँ पर बैठे तमाम तहसीलों के AC साहिबान इंट्रा लिंक होंगे DC साहब की इस मीटिंग में। DC बहावलपुर भी हमारे साथ हैं, यंग टैलेंटेड, आपके हमेशा से आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं और पहल भी हमेशा से बहावलपुर
भरपूर करता है, क्या बात है सर? जी बिल्कुल, ये एक आइडिया था। उसमें ये कि जिस तरह पंजाब में आपको पता है कि वीडियो लिंक के तर्ज पे सारे डीसीज जो एक ही जगह पे मीटिंग पे ऑनलाइन हो जाते हैं, मेरे जहन में ये था कि एक तो हम अपने कमेटी रूम की कोई रेनोवेशन करें, इसे स्टेट ऑफ द आर्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम इसे इक्विप करें, और साथ में ये था कि हम टाइम सेविंग, उसके अलावा रिसोर्स सेविंग के हवाले से ये कि एसीज को, जो आप देखेंगे मेरी जो फादर्स तहसील है वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, तो उन एसीज को यहाँ पे मीटिंग के सिलसिले में आना होता था, तो हमने उन्हें यहीं पे कनेक्ट कर लिया। अभी ये वीडियो लिंक, और पूरे पंजाब में ये पहला डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें हम अपने तौर पे खुद कोशिश करते हुए हमने पूरी सारी तहसीलों को वीडियो लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। ये था एक आइडिया जो कि फ्लोट भी हुआ। इस वक्त तमाम काबीना यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात की जाए तो बैठी है, और सामने तमाम तहसीलों के जो एसी साहिबान है वो इंट्रालिंक है। एक खूबसूरत इजाफा डीसी ऑफिस में कमेटी रूम के तौर पर, इससे पहले कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम को इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अब डीसी मोहसिन आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, मुल्तान से हम खबर शामिल करें। अराजी रिकॉर्ड सेंटर की 4 नई इमारतों की तामीर मुकम्मल होगी। इमारतों की तामीर पर 140 मिलियन की लागत आई। सादिकाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां अराजी रिकॉर्ड सेंटर की 4 नई इमारतों की तामीर मुकम्मल हो गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो मुल्तान रजा मलिक से। रजा मलिक साहब, बताए गए कौन कौन सी 4 इमारतें हैं? जी, ये 4 नई इमारतें हैं। यहाँ पहले भी लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो है वो काम कर रहा था, लेकिन ये किराए की इमारतों में यहाँ काम चलाया जा रहा था। 140 या 35 मिलियन लागत के 4 नई इमारतों में से 3 को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तहसील बहावलपुर में 38.9 मिलियन रुपए से, तहसील राजनपुर में 29.6 मिलियन रुपए से, और तहसील रुझान में 29.65 मिलियन रुपए की लागत से 3 इमारतों की तामीर जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जबकि सादकाबाद में 42.15 मिलियन रुपए की लागत से अराजी रिकॉर्ड सेंटर की इमारत तक तकमील के आखिरी मराहिल में है। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप बुजुर्गों और खवातीन को सहूलियात फराहम करने के लिए अलहदा से जो काउंटर है वो कायम किए गए हैं, और जून 2018 तक जो है वो टारगेट दिया गया है इस इमारत को भी मुकम्मल करने के हवाले से, जिसके बाद आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जो इनकी जो कारकर्दगी है इन सेंटर्स की वो बेहतर हो सकेगी। और अभी भी यहाँ लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वेटिंग एरिया की गुंजाइश जो है वो भी बढ़ा दी गई है, और इसके साथ हम जो टोकन सिस्टम है फर्ज के हवाले से और इंतकाल के दर्ज करने के हवाले से भी अमले की तादाद में भी इजाफा किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया रजा मलिक हमें अपडेट करने का। अपडेट करें मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर रोही की खबर पर एक्शन। रोही ने फातिमा और शेख शुगर मिल्स के जहरीला पानी सिम नाले में डालने की खबर नशर की थी। डीसी मुजफ्फरगढ़ सैफ अनवर का सिम नाले का दौरा, मसाइल हल करने की हिदायत जारी कर दी। जी हां, मुजफ्फरगढ़ में रोही की खबर पर एक्शन लिया गया। रोही ने फातिमा और शेखो शुगर मिल्स के जहरीला पानी सिम नाले में डालने की खबर नशर की थी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ताहिर शफीक से। ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज महमूद कोर्ट में एहतजाज किया गया था। रूही ने इसका मामला उठाया था, जिस पर डीसी मुजफ्फरगढ़ सैफ अनवर जब्बा ने विजिट किया है यहाँ सेम नाले पर। वहाँ पे महमूद कोर्ट के लोग थे, उनके मसाइल सुने हैं, और मजीद डीसी मुजफ्फरगढ़ ने शेखू मिल और फातिमा शुगर मिल का विजिट भी किया है। वहाँ पर उन्हें शेखू शुगर मिल में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन फातिमा शुगर मिल में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया था, जिससे जहरीला केमिकल वाला पानी सेम नाले में डाला जा रहा था। और शहरियों के मसाइल सुने हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है उनको कि उनके मसाइल फिलफौर हल किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। मुजफ्फरगढ़ से आम खबर शामिल करें। सिक्योरिटी इदारों की जिले सदर अस्पताल में फर्जी मशकें की गई। पुलिस, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और मुतालिका सिक्योरिटी इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जिला सदर अस्पताल में फर्जी मशकें की गई। फर्जी मशकों में पुलिस, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जिला सदर अस्पताल में फर्जी मशकें की गई। जी हां, आपको अपडेट करें मुजफ्फरगढ़ से, जहां पुलिस, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और मुतालिका सिक्योरिटी इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे काशिफ नजीर से।
हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है काशिफ से। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर सिक्योरिटी इदारों के जिला सदर अस्पताल में फर्जी मशकें, पुलिस, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं काशिफ नज़ीर से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मुजफ्फरगढ़ के जिला सदर अस्पताल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें थाना सिविल लाइन, पुलिस, रेस्क्यू, स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं 24वें जीवे पाकिस्तान साइकिलिस्ट रैली मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना हो गई। साइकिलिस्ट नौजवान मुख्तलिफ शहरों में मंशियात के खिलाफ स्पीकर्स और पम्फलेट तकसीम करते हुए जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद जाएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान यकूब। 24वीं जीवे पाकिस्तान साइकिलिस्ट रैली मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना हो गई। साइकिलिस्ट नौजवान एंटी नारकोटिक्स के तावन से मनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए लोगों में स्टिकर्स और पम्फलेट तकसीम करेंगे। साइकिलिस्ट नौजवानों का कहना है कि इनका मकसद खेलों से मोहब्बत का पैगाम देना है। ये कहना चाहेंगे नौजवान नस्ल को कि आए ग्राउंड आबाद करें, अस्पताल वीरान करें, ठीक है, नशे जैसी लालन से दूर रहें और सपोर्ट से प्यार करें, हमारा ये मकसद है। साइकिलिस्ट नौजवान मुख्तलिफ शहरों के स्कूलों, अस्पतालों और कॉलेजों में नौजवानों से मुलाकात करेंगे और मनशियात के खिलाफ आगाही लेक्चर भी देंगे। इनका कहना है कि आज अस्पताल को वीरान करने और मैदानों को आबाद करने की जरूरत है। स्कूल, कॉलेज, पब्लिक स्पॉट जितने भी हम उनको टच करते जाएंगे, उनको नौजवान नस्ल को बताएंगे कि हम नशे लानत से दूर रहें। हम उनमें ब्रोशर, पम्फलेट तकसीम करेंगे। अमन का पैगाम लेकर सफर करने वाले साइकिलिस्ट नौजवान 25 अप्रैल को वापस मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे, जहां इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अदनान याकूब, मुल्तान। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। क्यों न एक कप और हो जाए बदर टी। दूध और अंडे का इसमें पता है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, गेस्टों के
हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो से मुतासरा 49 अफराद विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गए। गैस्ट्रो का शिकार होने वालों में 19 बच्चे शामिल हैं। मसीह जानते हैं अतर लाशारी से। जी अतर बताएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसम में तब्दीली के बावजूद यहाँ पर जो गैस्ट्रो के हमले हैं वो जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में 19 बच्चों समेत 49 अफराद जो हैं वो गैस्ट्रो का शिकार होकर लाए गए हैं। लेकिन दूसरी जानब सिविल हॉस्पिटल से इंतजामिया से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास अभी तक कोई पेशेंट इस हवाले से नहीं आ रहा और उनका ये भी कहना था कि अभी तक हमें लगता है कि गैस्ट्रो जो है वो इस तरह से नहीं फैला जिस तरह से बात की जा रही है। और दूसरी जानब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसकी जानब से भी कोई अभी तक इकदाम जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही तो कोई काउंटर कायम किया गया है, बल्कि इस हवाले से अब तो लोग जो है वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस हवाले से बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को और हेल्थ इंतजामिया को जो है वो मुहिम चलानी चाहिए कि इस मौसम में जैसे बीमारियां फैलती हैं, वबाई अमराज का शक्ल अख्तियार कर जाती हैं, उसके कंट्रोल के लिए हर BHU में, हर RHC में और तहसील हेडक्वार्टर की सतह पर उनको सहूलत मुयसर होनी चाहिए कि इस तरह का कोई जो मर्ज होता है तो उसके बाद या जो वबा फैलती है उसके हवाले से लोगों को वैक्सीनेशन की और इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो मौजूद होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अतर लाशारी हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं मुल्तान से, जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ सूबाई हल्का 217 के यूथ कन्वेंशन में कारकुन पार्टी परचम मुफ्त हासिल करने पर उलझ पड़े। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ सूबाई हल्का 217 के यूथ कन्वेंशन में कारकुन पार्टी परचम मुफ्त हासिल करने पर ही उलझ पड़े। इसी बारे में मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद अनवर बताएगा। जी जुनेद बताएगा क्या मुआवजा है ये? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से यहाँ सूबाई हल्का 217 में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जबकि यूथ कन्वेंशन के इनेकाद के वक्त जो पार्टी रहनुमा थे जिनकी जैसे ये यूथ कन्वेंशन करवाया गया है उन्होंने कारकुनों के दरमियान पार्टी परचम जो थे वो तकसीम किए, मगर जो कारकुन थे वो बेहद बेमुनज़्ज़म थे और उन्होंने पार्टी परचम जो थे वो छीना झपटी की, जिसकी वजह से यह हंगामा आराई भी हुई और एक दूसरे को धक्के भी दिए गए, जिस पर देखते हुए इंतजामिया ने जो पार्टी परचम की जो तकसीम थी उसका रुकवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद हमें अपडेट करने का। रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ सिटी रहीम यार खान की तंजीम का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सिटी सदर चौधरी आसिफ मजीद ने की। इजलास में कल से 2 रोजा रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम बताएगा इजलास की कार्रवाई के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी रहीम यार खान की तंजीम का इजलास हुआ, जिसमें मेंबर साजी के हवाले से फैसले किए गए कि भरपूर तरीके से मेंबर साजी मुहिम का आगाज कल से किया जाएगा। इजलास की सदारत सिटी सदर आसिफ मजीद ने की। आसिफ साहब, मेंबर साजी करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहीम यार खान में, कितने कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला के फजल करम से मेंबर साजी का बाकायदा आगाज़ रहीम यार खान ज़िले हेडक्वार्टर में हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंतहाई जोश और जज्बे से, एक नए वलवले से, एक नई लगन से ये जो मेंबर साजी का आगाज़ हो रहा है, एक्चुअली ये लोगों को नए पाकिस्तान की तमीर में शामिल हाल करना है। इमरान खान की एक टीम बनने जा रही है जो अल्लाह के फजल करम से 2018 के इलेक्शन में हमारे जो इलेक्शन है उसमें इंशाल्लाह ये कामयाबी की सूरत में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, तो मैं समझता हूँ ये उसकी टीम है जो ग्रास रूट लेवल तक काम करेगी। ये पार्टी की मेंबर साजी रीढ़ की हड्डी साबित होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग, अच्छा हमने अभी सुबह से आगाज करना है लेकिन हमें एक हफ्ते से फोन आ रहे हैं लोगों के कि जी कब आगाज करें, हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम इमरान खान का टीम का एक सिपाही बनना चाहते हैं, उसके साथ कदम ब कदम मिला के काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगेंगे और अब इंशाल्लाह
बहुत जोश से ये काम शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें शहर की बेहतरीन जो जगह हैं, जो जैसे कहा जाता है दिल शहर के दिल है, वहाँ पर ये कैंप लगाए जाएंगे और भरपूर तरीके से मुहिम का आगाज करने के हवाले से फैसला किया गया और कल से बाकायदा तौर पर इसका आगाज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ सदीक हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं बहावलपुर से, जहां पर सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का बहावलपुर का दौरा, सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का बुनियादी मराकज़ से सेहत का दौरा। डॉक्टर फयाज अनवर को बहावलपुर की बुनियादी मराकज़ से सेहत का जायजा। डॉक्टर फयाज अनवर ने अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अतर लशारी से। अतर, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है कि सीईओ ने आज रोही चौलिस्तान के जो बीएचयू है खुतड़ी बंगला का, वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर खास तौर पर आज जो 2 वार्ड बॉयज वहाँ पर गैर हाजिर थे और 106 डीबी में, तो वहाँ पर उनको पाबंद किया ऑफिस में। और खास तौर पर उनका कहना था कि जो गायनी की सहूलियात दी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, हमें सुनने में ये आ रहा है कि वो पूरी जो सहूलियात हैं वो खवातीन तक बहम नहीं पहुँचा जा रही। तो इस हवाले से कोई भी जो अमला है वो इसमें या तो उसकी नेग्लिजेंस साबित हो गई तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिसिन स्टोर है उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है और जो लोग रोही चौलिस्तान के लोग, खुतरी बंगला के लोग यहाँ पर आ रहे हैं अद्वियात के लिए, उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए और डॉक्टर्स किसी भी सूरत में बगैर किसी इतला के गैर हाजिरी नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अतर लशारी हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुख्तलिफ फसलात की पैदावार में पंजाब भर में नुमाया पोजीशन लेने वाले काश्तकारों में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। अतर लाशारी की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत तोसी बहावलपुर की जानिब से मुख्तलिफ फसलात की पैदावारी मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। सूबाई वजीर बराए इमदाद बाहमी पंजाब मलिक इकबाल चन्नड़ और चेयरमैन जिला काउंसिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन जिला काउंसिल शेख दिलशाद अहमद ने ज़राअत तोसी और काश्तकारों की मेहनत को सराहा। ये मुकाबले बहुत जरूरी है, इसमें एक अवेयरनेस पैदा होती है और ये महकमा ज़राअत का बहुत बड़ा कारनामा है। बहावलपुर डिवीजन ने पंजाब भर में किनों की पैदावार में पहली, आम में दूसरी और अमरूद की पैदावार में तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वजीर मलिक इकबाल चन्नड़ का कहना है कि हमारे काश्तकार मिट्टी से सोना उगा सकते हैं। हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चे यहाँ एग्रीकल्चर से अवेयरनेस होंगे, हमारे बच्चे यहाँ लाइफ स्टॉक से अवेयरनेस देंगे। तकरीब में डिवीजन भर से काश्तकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के आखिर में जिला डिवीजन और सूबाई सतह पर नुमाया पोजीशन लेने वाले काश्तकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतहर लाशारी बहावलपुर। अब आपको बताएं बहावलपुर से, जहां भी बहावलपुर के चिड़ियाघर में मोर समेत दीगर सरप्लस परिंदे कमर्शलाइज होने को तैयार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में ब्रीडिंग का सीजन शुरू होते ही चिड़ियाघर में सरप्लस परिंदे कमर्शलाइज करने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से सरप्लस परिंदों की फहरिस्त डिप्टी डायरेक्टर अनवर मान को अरसाल की गई है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि चिड़ियाघर में सरप्लस मोर, फीजेंट और दीगर नायाब परिंदे ZMC कमेटी के जरिए कमर्शलाइज किए जाएंगे। चिड़ियाघर के तमाम परिंदों को हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। चिड़ियाघर में हर साल नए परिंदों की अफजाइश नस्ल के बाद परिंदे सरप्लस हो जाते हैं, जिन्हें कमर्शलाइज करना जरूरी होता है। इंतजामिया चिड़ियाघर में परिंदों की गुंजाइश से ज्यादा परिंदे नहीं रख सकती। हुकूमत से ये परिंदे आम शहरी भी मुकर्ररा कीमतों पर खरीद कर ले जा सकते हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।